Hello students, good morning. In this class, we will discuss about lesson first of subject science. The first lesson is nutrition. Please listen carefully and try to understand as much as possible for you. I will also try to make you understand very well. The term is nutrition. न्यूट्रिशन को सबसे पहले हम लोग फाइन करेंगे न्यूट्रिशन है क्या व्हाट इज न्यूट्रिशन द टर्म न्यूट्रिशन इज derived from nourishment nutrition means nourishment that means पोषण हमारा पोषण किस तरह से as we know that food is essential component for all the organism for its survival. Food provides us energy, and in which way, how does food provide energy? By which process we get energy from the food? We will discuss about in the topic nutrition. न्यूट्रिशन में ये सारे चीजें ये सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कि फूड से हमें एनर्जी कैसे प्राप्त होता है कैसे हम फूड का यूटिलाइजेशन करते हैं कैसे हमारा बॉडी डेवलप करता है ग्रोथ करता है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्लांट्स हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या एनिमल्स हो किस तरह से वो अपना नरिशमेंट करता है किस तरह से उसका पोषण होता है वो सारी चीजें आप और हम मिलकर डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इज द टर्म which is defined as the process of taking food and utilization of it. The process of taking food and utilization of it is known as nutrition. फूड का ग्रहण करना भोजन को खाना और उसका शरीर में लगने का तात्पर्य हुआ कि फूड से जो मिलने वाला एनर्जी है वो किस तरह से हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में ग्रोथ में हेल्प करता है कैसे हमारा बॉडी डेवलप होता है किस तरह से एनर्जी प्राप्त किया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन the process of taking food and utilization of it for the development and growth and to repair the damage हमारे बॉडी में जो डैमेज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो डैमेज होता है कट जाता है टूट जाता है उसका जो रिकवरी होता है वो बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड से जो एनर्जी प्राप्त होती है उस एनर्जी से सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है सेल डिवीजन से फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल होता है नए सेल बनते हैं जिससे हमारे बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होने वाले डैमेज को रिपेयर किया जाता है न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन the organisms are classified into two types autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition nutrition is of two types heterotrophic
Nutrition is of two types: autotrophic and heterotrophic. Heterotrophic. Autotrophic mode of nutrition. There are two types of mode of nutrition: autotrophic and heterotrophic. Autotrophic, autos means auto, auto means self, and tropos, tropos means nourishment. We can say that self-nourishment. In which mode of nutrition? In which mode of nutrition self-nourishment takes place? In which mode of nutrition self-nourishment takes place? That mode of nutrition. That mode of nutrition is known as autotrophic mode of nutrition. जिस mode of nutrition में, जिस type of nutrition में ऑर्गेनिज्म सेल्फ नरिशमेंट करता है, वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। एज वी नोटेड, जैसा हम सभी जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स, only the organisms on this earth, on this nature, green plants are only the organisms which perform self-nourishment. Only green plants prepare their food by using the simple inorganic substances like CO2 and H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर एवं मिनरल के हेल्प से फूड प्रिपेयर करने का काम केवल प्लांट्स करता है। कह सकते हैं कि प्लांट्स ही वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड प्रिपेयर करता है। So we can define the term autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition को define किया जाता है the process or the mode of nutrition in which green plants prepare their food by themselves. Green plants prepare their food themselves. जिस मॉड ऑफ न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर स्वयं करते हैं, उस मॉड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जिस प्रोसेस के द्वारा फूड प्रिपेयर होता है, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करता है, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोस means sunlight and synthesis combine together photo means sunlight, synthesis means combine together। that means sunlight के द्वारा CO2 और H2O को मिलाकर ग्लूकोज बनाया जाता है, फूड बनाया जाता है। So photosynthesis is defined as the process by which green plants
green plants make their food themselves. Make their food themselves. थोड़ा ध्यान देंगे, देखने के साथ साथ आप बोलने पर भी ध्यान देंगे। themselves, जो चीजें आप सुन रहे हैं उच्चारण पर भी आप ध्यान देंगे। The process by which green plants make their food themselves by using CO2, water, H2O, and minerals. In the presence of in the presence of sunlight and chlorophyll. Sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis. Photosynthesis is the process by which green plants make their food themselves by using CO2, H2O, carbon dioxide gas, water, and minerals. In the presence of sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis. यहाँ पर हम एक चरण देखेंगे chlorophyll. What is the chlorophyll? It is the green pigment. It is the green pigment. It is the green pigment present in the leaves. Chlorophyll is present in the chloroplast. Chlorophyll कहाँ होते हैं? Chloroplast. Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? लीव्स में जो सेल होता है उस सेल के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जिसे ग्रीन पिगमेंट कहा जाता है। एंड ड्यू टू presence of this green pigment provides or gives the green color to the leaves. पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो इसी क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण होता है। What is the function of this chlorophyll? इस क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है? It helps to trap the sunlight. यह सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है और सनलाइट एनर्जी से फूड का सिंथेसिस होता है, यानी फूड का फॉर्मेशन होता है। फूड प्रिपरेशन जो होता है इसी सनलाइट के कारण। हम कह सकते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना दैट मीन्स कन्वर्जन इनटू केमिकल एनर्जी। As we know that on this earth, in this nature, sun is only one ultimate source of energy. sun एकमात्र अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो अर्थ पे एनर्जी प्रोवाइड करता है और जिसके ट्रांसफॉर्मेशन से लाइफ एग्जिस्ट करता है। यानी existence of life on the earth due to presence of light energy, sunlight energy। तो हम यहाँ बात करेंगे फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में होता है।
So reaction for photosynthesis, आप नोट करेंगे रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में? CO2 प्लस H2O, CO2 एयर से प्राप्त किया जाता है एटमॉस्फेयर से, H2O को सॉइल से by the help of root, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से in the presence of sunlight, in the presence of sunlight and chlorophyll, in the presence of sunlight and chlorophyll, glucose is formed. Glucose is formed with the evolution of oxygen gas. With the evolution of oxygen gas, carbon dioxide, अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप नाम पर ध्यान दें। CO2 is carbon dioxide, H2O is the formula of water. Carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll. Sunlight and chlorophyll gives glucose plus oxygen. फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है विद द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। साथ में ऑक्सीजन गैस निकलता है, तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस which maintain the balance of CO2 and O2 in the atmosphere। अर्थ एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस का जो संतुलन बनाए रखता है, जो दोनों को बैलेंस करता है, दोनों को रेशियो को मेंटेन रखता है, वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। Only this process gives oxygen in this nature or provide us oxygen, and animals survive or respire the oxygen which is released through the process of photosynthesis। photosynthesis process के द्वारा जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, उसी ऑक्सीजन से एनिमल सर्वाइव करते हैं, एक्सपायर करते हैं। तो ग्लूकोज, प्लांट जो फूड प्रिपेयर करता है किस फॉर्म में करता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। प्लांट्स में जो फूड प्रिपरेशन होता है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज के रूप में फूड प्रिपेयर होने के बाद इससे जो एनर्जी प्राप्त होता है, उससे इसका बॉडी डेवलपमेंट और भी जो प्रोसेस होते हैं। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी बच जाता है तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं, in which form the extra amount of energy is stored in plants। प्लांट्स में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी किस रूप में जमा होता है? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लांट्स में किस रूप में जमा होता है? तो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। आंसर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्वेश्चन है in which form extra amount of energy is stored in plants। किस रूप में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होता है? आंसर है इन द फॉर्म ऑफ और एज द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टार्च के रूप में
स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। अब बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, रिएक्शन में सारा कुछ अब स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सेकेंड, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट और लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, formation of glucose, formation of glucose, evolution of oxygen gas। ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। तो ये सारे प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के होते हैं। यानी न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात हो रही है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। नाउ वी विल सी in details in which way nutrition takes place in green plants। green plants में nutrition किस तरह से होता है, ये तो सीधा सीधी हम लोगों ने देखा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस तरह से न्यूट्रिशन होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। Look here, this is plant and this is root. This is leaves. लीव्स में अस्टोमाटा होते हैं। क्या होते हैं? अस्टोमाटा। The tiny pores, the fine pores present on the surface of leaves, that is known as astomata। लीव्स के सरफेस पे स्मॉल पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स, जिसे अस्टोमाटा कहते हैं। अस्टोमाटा सराउंडेड बाय, अस्टोमाटा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। जिस सेल्स के द्वारा घिरा हुआ होता है उसे गार्ड सेल्स कहते हैं, गार्ड सेल्स। अब जो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे थे वो यही प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द प्लास्टिड, जिसे हम लोग सेल चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर बेसिक्स जान लेते हैं कि क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो लीव्स के सेल में होता है। अस्टोमाटा एटमॉस्फेयर से, एयर से CO2 अब्सॉर्ब करता है, CO2 अब्सॉर्ब करता है। सन से इसे एनर्जी प्रोवाइड होता है, सनलाइट। सॉइल से वाटर अब्सॉर्ब किया जाता है, सॉइल से वाटर प्लस मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स through the root from the soil। by the help of root, water and minerals transported, water and minerals transported to the leaves। leaves तक water minerals को पहुंचाया जाता है through a particular vessels, through a particular vessels which is known as xylem। इतना कुछ है नहीं, ध्यान रखेंगे xylem उस वेसल का नाम है जिसके थ्रू वाटर एंड मिनरल्स रूट से लीव्स तक जाता है। क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या है, कौन कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। जैसे पूछा जाता है आपको कि सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो क्या चाहिए? पोटैटो चाहिए, आलू चाहिए, प्याज चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, जो भी कंपोनेंट होते हैं उसे हम रॉ मटेरियल्स कहते हैं, जिसका यूज किसी चीज के प्रोडक्शन में, किसी चीज के फॉर्मेशन में किया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस में फूड प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से मटेरियल की, कौन कौन से कंपोनेंट की आवश्यकता होती है,
that is known as CO2 and water. This is the raw materials for photosynthesis. अगर कहा जाए necessary component for photosynthesis, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं? तो चार है, उसमें CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये चारों मेंशन करोगे। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से इसेंशियल कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल चारों देंगे। लेकिन रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस पूछा जाए, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, देन ओनली गिव CO2 एंड वाटर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फूड का प्रिपरेशन होता है। आज का ये फर्स्ट क्लास था, आपका इंट्रो क्लास था चैप्टर न्यूट्रिशन का। इसी के साथ अब लास्ट करते हैं। अगर कोई डाउट हो, किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो चैट सेक्शन में मेंशन करेंगे, आपको नेक्स्ट क्लास में या चैट सेक्शन में आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स वगैरह भी, क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। चैट सेक्शन में होमवर्क दिए जाएंगे जिसे आपको कंप्लीट करना है। अगर साथ साथ कंप्लीट करोगे, साइंस पढ़ने का एक अलग ही मजा आएगा, एक अलग ही इंटरटेन करोगे आप, और पता नहीं चलेगा कि पूरी की पूरी साइंस आपके लक्ष्य पर, आपके होठों पर होंगे, और आसानी से एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं, एक एंजॉयमेंट के रूप में आप इसे कवर करेंगे, कमांड करेंगे। आज के लिए इतना काफी, दैट्स ऑल, थैंक यू।